Tuteja Furnitures, proprietor Mr. Ashok Tuteja. Mahal Restaurant, Raipur Road, Bilaspur, proprietor Mr. Bunty Pamnani. Hotel Jeet Continental, Shivtaki Chowk, Bilaspur, proprietor Mr. Pratik Upveja. New Goodwill Gift Corner, proprietor Mr. Aman Kalwani. Nisha Daily Needs, Sarkanda, proprietor Mr. Prakash Mehar Chandani. Cake Walkers, proprietor Mr. Vicky Gondwani. Royal King, proprietor Mr. Rajesh Pandey. GN Place, proprietor Mr. Raktim Sarkhel. Brand Store Shoe Collection, proprietor Mr. A.D. Tamrakar. Purnima Jewelers, Juni Line Bilaspur, proprietor Mr. Manoj Soni. Baker's Farm and Cafe Ibiza, Tarbahar Chowk, proprietor Mr. Vishal Vidhani. Protein Hub, proprietor Mr. Jishan Khan. Vinayak Realtors and Tourist Packages, proprietor Mr. Ashish Kapoor. Aurora Traders, Sarkanda, proprietor Mr. Manish Arora. Mamaya Tent and Caterers, Sarkanda, proprietor Mr. Ravindra Devangan. Bilaspur Mobile Repairing and Training Center, Raju Plaza, Bilaspur, proprietor Mr. Pintu Yadav. Car Garage, Sipat Chowk, Sarkanda, Bilaspur, proprietor Mr. Pankaj Sahu. Siddhi Vinayak Traders, proprietor Mr. Aman Diwan. Tuteja Furnitures, proprietor Mr. Ashok Tuteja. Mahal Restaurant, Raipur Road, Bilaspur, proprietor Mr. Bunty Pamnani. Hotel Jeet Continental, Shivtaki Chowk, Bilaspur, proprietor Mr. Pratik Upveja. New Goodwill Gift Corner, proprietor Mr. Aman Kalwani. Nisha Daily Needs, Sarkanda, proprietor Mr. Prakash Mehar Chandani. Cake Walkers, proprietor Mr. Vicky Gondwani. Royal King, proprietor Mr. Rajesh Pandey. GN Place, proprietor Mr. Raktim Sarkhel. Brand Store Shoe Collection, proprietor Mr. A.D. Tamrakar. Purnima Jewelers, Juni Line Bilaspur, proprietor Mr. Manoj Soni. Baker's Farm and Cafe Ibiza, Tarbahar Chowk, proprietor Mr. Vishal Vidhani. Protein Hub, proprietor Mr. Jishan Khan. Vinayak Realtors and Tourist Packages, proprietor Mr. Ashish Kapoor. Aurora Traders, Sarkanda, proprietor Mr. Manish Arora. Mamaya Tent and Caterers, Sarkanda, proprietor Mr. Ravindra Devangan. Bilaspur Mobile Repairing and Training Center, Raju Plaza, Bilaspur, proprietor Mr. Pintu Yadav. Car Garage, Sipat Chowk, Sarkanda, Bilaspur, proprietor Mr. Pankaj Sahu. Siddhi Vinayak Traders, proprietor Mr. Aman Diwan. Tuteja Furnitures, proprietor Mr. Ashok Tuteja. Mahal Restaurant, Raipur Road, Bilaspur, proprietor Mr. Bunty Pamnani. Hotel Jeet Continental, Shivtaki Chowk, Bilaspur, proprietor Mr. Pratik Upveja. New Goodwill Gift Corner, proprietor Mr. Aman Kalwani. Nisha Daily Needs, Sarkanda, proprietor Mr. Prakash Mehar Chandani. Cake Walkers, proprietor Mr. Vicky Gondwani. Royal King, proprietor Mr. Rajesh Pandey. GN Place, proprietor Mr. Raktim Sarkhel. Brand Store Shoe Collection, proprietor Mr. A.D. Tamrakar. Purnima Jewelers, Juni Line Bilaspur, proprietor Mr. Manoj Soni. Baker's Farm and Cafe Ibiza, Tarbahar Chowk, proprietor Mr. Vishal Vidhani. Protein Hub, proprietor Mr. Jishan Khan. Vinayak Realtors and Tourist Packages, proprietor Mr. Ashish Kapoor. Aurora Traders, Sarkanda, proprietor Mr. Manish Arora. Mamaya Tent and Caterers, Sarkanda, proprietor Mr. Ravindra Devangan.
अवेंजर्स के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आ जाएं। एक अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाएं। इसका मैच है, टॉस कौन जीता है? एवेंजर्स और किसका है? रुक जाओ, इसका एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया अवेंजर का। स्ट्राइकर है। ये कौन है स्ट्राइकर है? सचिन वॉरियर्स वर्सेस अवेंजर स्ट्राइक स्टार तखतपुर। सचिन वॉरियर्स लोरमी। टॉस जीता है सचिन वॉरियर ने, बॉलिंग किया है, बैटिंग कर रहा है तखतपुर। ओके, उधर नॉन स्ट्राइक में कौन है? नॉन स्ट्राइक में हाँ ओके ठीक है चिंपू भैया। क्या नाम है? अभिषेक। और इस वक्त प्रहारक छोर पर प्रहारक बल्लेबाज मिस्टर अभिषेक ठाकुर, और पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, और पहले ही गेंद पर पूरी तरह से प्रहारक मानसिकता के साथ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, गेंद को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क अच्छा नहीं रहा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जा सकती है। जी हाँ, आज का तीसरा और बड़ा मुकाबला एवेंजर वॉरियर्स वर्सेस सचिन वॉरियर्स के मध्य खेला जा रहा है। लोरमी और तखतपुर की दोनों ही शानदार टीमें, बड़ी टीमें, प्रचलित टीमें और शानदार खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें। अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज संतोष। अभिषेक को और प्रहार करना चाहते थे, बल्ला तेजी से घुमाया था। पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी वापसी गेंदबाज की। अब तक 3 गेंदें डाले हैं, पहली गेंद पर छक्का लगाया था बल्लेबाज अभिषेक ठाकुर ने, और अगली गेंद लेकर तैयार संतोष, और बल्ला तेजी से पुनः घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा जा लगी बेल्स पर और अलग किया।
लेकिन गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क ना हो सका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी गेंदबाज मोनू। अगली गेंद लेकर तैयार है मोनू सामना करने के लिए। प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज विनय, और पटकी हुई गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात चुस्ती दुरुस्ती के साथ फील्डर क्षेत्ररक्षण करते हुए गेंद को सीधे दे मारा गेंदबाज के हाथों में और एक ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक उल्टे हाथ के बल्लेबाज। 1 मिनट मैच रोकेंगे, जो कि स्ट्राइक पर अभी बल्लेबाज है उनका नाम बता दे, अन्यथा एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर भेज दें जिन्हें सभी खिलाड़ियों के नाम पता हो। स्कोरिंग कमेंट्री में सभी तरह के दिक्कत हो रहे हैं। प्रवीण पांडे, जी हाँ धन्यवाद। ओके, प्रवीण पांडे प्रहारक छोर पर मौजूद है सामना करने के लिए मोनू की गेंदों का, और पटकी हुई गेंद थी, निश्चित ही दिशाहीन गेंदबाजी और उतना ही खराब क्षेत्ररक्षण। कुल मिलाकर 5 रन अतिरिक्त आते हुए उपहार दिया है 5 रनों का तोहफा। कबूल कीजिए इस तरह का खराब गेंदबाजी। और मोनू लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन खराब गेंदबाजी, पिछली गेंद डाली थी दिशा से भटके थे और साथ ही साथ खराब क्षेत्ररक्षण। कुल मिलाकर 5 रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप दिया था। मोनू को वापसी करने की आवश्यकता, रन्स बनाने होंगे और कदमों से पूरी तरह से गेंदबाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज प्रवीण। फ्री हिट, नो बॉल का इशारा था, साथ ही साथ फ्री हिट बॉल है और फ्री हिट बॉल का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद हैं प्रहारक बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज मिस्टर प्रवीण। और देखना होगा इस फ्री हिट गेंद का कितना फायदा उठा पाएंगे। नो बॉल था और एक और वाइड बॉल, पुनः एक गेंद डालने पड़ेगी। वाइड बॉल है, फ्री हिट बॉल है और इस फ्री हिट बॉल में पूरी तरह से दबाव नजर आता हुआ गेंदबाज के चेहरे पर। और अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज मोनू, और कदमों का प्रयोग किया था लेकिन गेंद को समझने में नाकामयाब रहे। फ्री हिट बॉल पर कोई भी रन नहीं बना पाए मिस्टर प्रवीण। अच्छी वापसी गेंदबाज मोनू की, अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है इस वक्त प्रवीण को। और एक और दिशाहीन गेंदबाजी, निश्चित ही बड़ा मंच है, बड़ा मौका है और हड़बड़ाहट नजर आती हुई इस वक्त लोरमी की टीम के द्वारा। और वाइड बॉल का इशारा और 1 रन बाई के रूप में कुल मिलाकर 2 रन और अतिरिक्त उपहार स्वरूप दे दिया है यहाँ पर गेंदबाज मोनू ने। और लो फुल टॉस किस्म की गेंद थी, ड्राइव लगाना चाहते थे। गेंद और बल्ले के मध्य पुनः कोई बहुत ही अच्छा संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथों में और 1 रन। और हल्के हाथों से खेला है, ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। ओवर, दो ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रनों के मुकाम पे 1 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस मैदान पे यह शानदार मुकाबला विनीत कप 2021 का यह गौरवशाली 10वां वर्ष, 10वें वर्ष का यह तीसरे दिन का यह तीसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है लोरमी वर्सेस तखतपुर के मध्य। अब तक तखतपुर पहले बल्लेबाजी करते हुए
2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रन बना है 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत कही जा सकती है तखतपुर के द्वारा। और सर्कल समाप्त हो चुका है तो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस भी समाप्त होते हैं। साथ ही साथ अपने हिसाब से फील्डर लगा सकते हैं, 5 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं। और नए गेंदबाज मैं बताना चाहूंगा के यादव। जी हाँ, अच्छे गेंदबाज हैं के। और के की इस गेंद का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है प्रहारक बल्लेबाज प्रवीण। और सीधे बल्ले से प्रहार किया, गेंद सीधी खड़ी हो गई, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद और एक आसान सा कैच। हताश उदास निराश चेहरे के साथ वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज प्रवीण। और प्रहार करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क ना हो सका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी बीच करारा प्रहार कर रहे हैं लगातार, बेहतरीन शॉट, 6 रन। के यादव, अच्छी वापसी करने की आवश्यकता, रन्स बचाने होंगे, विकेट चटकाने होंगे। और पलट कर मारना चाहते थे, पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क ना हो सका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी वापसी के यादव। और विनय प्रहार करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क ना हो सका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद, और के इस गेंद को खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण। निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए 3 रन बचाने में कामयाब हुए हैं और लगातार रन्स बना रहे हैं इस वक्त तखतपुर के सभी खिलाड़ी, सभी बल्लेबाज। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात 29 रनों के मुकाम पे, माफ कीजिएगा 31 रनों के मुकाम पे 2 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे यह शानदार आयोजन। और देखना होगा कप्तान अगले ओवर की गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित करते हैं और कप्तान के भरोसे पर कितना खरा साबित होते हैं, ये भी देखना होगा गेंदबाज। निश्चित तौर पर बड़ा मुकाबला, अच्छा मुकाबला होता हुआ तखतपुर के सभी शानदार खिलाड़ी और साथ ही साथ लोरमी के जबरदस्त खिलाड़ियों से सजी हुई ये टीमें। अच्छा मुकाबला, बड़ा मुकाबला। अगली गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाज। विकेट, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, एक टप्पे के पश्चात गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी शुरुआत विक्की द्वारा निश्चित ही जबरदस्त गेंदबाज माने जाते हैं, अच्छे टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करने के लिए माहिर। और एक और शानदार गेंद, चकमा देने में कामयाब रहे बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी मिस्टर विक्की।
एक और शानदार गेंद, पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मेरे को ना भैया एक जन का केक कटाने जाना था, आपके कारण अब मैं नहीं जा पाऊंगा। आओ ना भैया, अभी भी फोन नहीं उठा रहे। और अगली गेंद, एक और शानदार गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी विक्की के द्वारा। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विक्की अगली गेंद। इस दिन का यह दूसरा मैडन ओवर विक्की के नाम रहा। इस दिन का तीसरा मैडन ओवर विक्की के नाम रहा। आज तीनों मैचों में एक एक मैडन ओवर देखने को मिले हैं निश्चित तौर पर। मैडन ओवर प्लस विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी। प्रशांत सोनी ना, प्रशांत। के अपने कोटे का दूसरा ओवर अपने टीम के लिए पांचवा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज को के। हाँ भाई, अरे मैं सोचा तू एक पॉट बोला है, तू दो पॉट और 8 में की करवाया है। 1200, दो पॉट का 800, 4 में की का 400। हाँ, 1000 क्यों? तेरे लिए तो तू नहीं भी कराएगा तो भी चलाएंगे भाई, हमारा छोटा भाई है। इसी बीच एक और शानदार गेंद, बाहर निकलती हुई यह गेंद थी। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क ना हो सका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चल ठीक है गौतम, मिलता हूं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज के। ओवर चल रहा पांचवा, डबल 3, 2 ओवर में 24 है ना, 2 ओवर में 24। चार कैमरे संभालना यार, खोलना सा कैमरा था, फुलते यार। ओवर 5 ओवर 37 रन। ओवर 5 ओवर 37 रन। साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 37 रनों के मुकाम पे 3 विकेट के नुकसान पे तखतपुर एवेंजर्स।
इसी बीच शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी, एक बड़ा छक्का बल्लेबाज अनीस के बल्ले से निकलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी निश्चित ही गेंदबाज हेमंत। और प्रहार कर रहे हैं लगातार, छक्का अब की बार। और अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज प्रहारक छोर पर मौजूद है। प्रहारक बल्लेबाज और कर रहे प्रहार लगातार, पूरी तरह से विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। इसी के साथ ही तखतपुर एवेंजर्स के 50 रन पूरे हो चुके हैं। और एक और छक्का, यूथ 6। और इस आयोजन का हैट्रिक छक्का, इस वर्ष का पहला हैट्रिक छक्का लगाया। और प्रहार करना चाहते थे, गेंद सीधी खड़ी हो गई, क्षेत्र रक्षक तैनात, गेंद सीधा विकेट कीपर के सेफ हैंड दस्तानों में। विक्की जो कि अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम के लिए 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं। प्रहारक छोर पर मौजूदा प्रहारक बल्लेबाज सूरज, और हल्के हाथों से खेल दिया है निश्चित ही थर्ड मैन की दिशा में, और 4 रन नहीं रोक पाएंगे। जी हां, कलात्मक शॉट खेला, निश्चित तौर पर 4 रन अपने टीम के लिए जोड़ा। अच्छी बल्लेबाजी। और ड्राइव लगाना चाहते थे, बल्ले पर अच्छी तरह से आई नहीं गेंद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ चुके हैं प्रहारक बल्लेबाज प्रशांत।
और आसान सा मौका गंवाया। गेंदबाज क्षेत्र रक्षक थे, शायद मोनू थे क्या, मोनू काफी नर्वस में नजर आ रहे हैं। पहले गेंदबाजी की काफी एक्स्ट्रा रन खर्च किए और अब क्षेत्र रक्षण में मौके प्रदान कर रहे हैं लगातार बल्लेबाजों को और हल्के हाथों से खेलकर भाग पड़े हैं बल्लेबाज। पॉइंट की दिशा में खेला गया यह स्ट्रोक 1 रनों के लिए। कहाँ जा रहे हो भैया? और ड्राइव लगाया है ऑन साइड की दिशा में, ऑफ साइड की दिशा में और वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात। एक ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा तालमेल नजर आता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। भाई एलईडी स्क्रीन के सामने से हट जाएं। प्लेयर पवेलियन में बैठे वहां से हट जाएं, एलईडी स्क्रीन के पास से। हमारे बीच नवभारत के युवा पत्रकार रवि त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो आगे मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आदरणीय नई दुनिया के हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भैया सुरेश पांडे जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। तखतपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष ठाकुर वरुण सिंह जी, करनी सेना जिला प्रमुख, वो भी हमारे बीच मौजूद है। और गेंदबाज संतोष पर भरोसा जताया है कप्तान ने और गेंदबाजी की कमान सौंपी है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ हमारे बड़े भाई यंग डैशिंग स्टार अंपायर बड़े भाई करण मेहता जी। लोक स्वर समाचार के क्राइम रिपोर्टर नारायण भैया भी हमारे बीच मौजूद हैं। स्ट्राइक में और गेंदबाज संतोष सामना करने के लिए प्रारंभ छोर पर मौजूद है। बल्लेबाज प्रशांत अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे प्रशांत। और ऑफ साइड की दिशा में खेला गया यह शानदार स्ट्रोक, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, काफी सुस्त नजर आती हुई इस वक्त लोरमी की टीम हार मान चुकी है ऐसा लगता है। मैं बताना चाहूंगा यह क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की आवश्यकता। अगली गेंद और पटकी हुई गेंद खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, 4 रन। कहाँ भैया 2 मिनट हुआ, माँ कसम कितना समय बोले थे ऑन सुन। मेरे को बुलाएंगे ना तो मैं भी भाग दूंगा माँ कसम। और सीधे बल्ले से प्रहार करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्लोअर यॉर्कर मिस किया बल्लेबाज ने, लेकिन बाई के रूप में 1 रन चुराने में कामयाब रहे। बैटिंग पावर प्ले का अब तक कुछ खासा अच्छा फायदा नहीं उठा पाए हैं बल्लेबाज।
शहनवाज जी, मैं यहाँ हूँ ग्राउंड में, बताओ। हाँ चलो बाहर। हाँ। और हल्के हाथों से खेला है, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बोलना बोलना बोलना, सुन रहा हूँ भाई। हाँ बिल्कुल, मेरे से पूछेगा, मेरा मैं। बॉलर का नाम बताएंगे? अनीस। गेंदबाज अनीस। अनीस की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद हैं इस वक्त बल्लेबाज सूरज। सूरज है कि प्रशांत? सूरज है ना स्ट्राइक पे? हेलो, प्रशांत। रीस्टार्ट मारा फोन को। अनीस बॉलर, सुन ये बता मेरे को, शहनवाज का ऊपर कितना समय हो गया? हाँ तो 15 मिनट बोल रहे हैं। और मौका था, गंवाया। लगातार खराब क्षेत्र रक्षण। शानदार, जानदार, जबरदस्त छक्का बल्लेबाज सूरज के बल्ले से निकलता हुआ आउट ऑफ द स्टेडियम, इनटू द स्टैंड्स। अंठानबे रनों पर जा पहुंची है तखतपुर एवेंजर्स की यह टीम। और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाने में कामयाब हुए क्षेत्ररक्षक। और इसी के साथ ही 100 रन पूरे हो चुके हैं तखतपुर एवेंजर्स के। काफी उम्दा और जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है अब तक तखतपुर एवेंजर्स। और अच्छी गेंदबाजी, इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 100 रनों के मुकाम पे
4 विकेट के नुकसान पे तखतपुर एवेंजर्स की टीम इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए विनीत कप के इस शानदार मैदान पे। बड़े भाई मयंक सिंह गौतम जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। गेंदबाज है मोनू। जी हाँ, मोनू की पहली गेंदों पर प्रहार किया बल्लेबाज ने और साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है। हेलो, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहां पर मोनू की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है प्रहारक बल्लेबाज सूरज, और प्रहार किया है। निश्चित ही क्या होगा देखना होगा। गेंद सीधा एक टप्पे के पश्चात क्षेत्ररक्षक के हाथों में जबरदस्त तरीके से क्षेत्ररक्षण करते हुए गेंद को दे मारा सीधा गेंदबाज के हाथों में। इस पारी का अंतिम ओवर गतिमान है, गेंदबाजी कर रहे हैं मोनू, और मोनी की इस गेंद को ऑफ साइड की दिशा में खेला है। निश्चित ही वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं, 1 रन ले चुके हैं और दूसरे रनों के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज, और 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। जबरदस्त तालमेल नजर आता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। और इस वक्त कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद हैं मेरे बड़े भाई मयंक सिंह गौतम जी, जो कि इस मैच की अगली इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाएंगे आप सभी को। और मोनू, और इसी बीच शानदार शॉट, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात। निश्चित ही अच्छा क्षेत्ररक्षण और 1 ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। मैं बताना चाहूंगा बेलतरा एनएसयूआई विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भाई मयंक सिंह गौतम जबरदस्त स्टार कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं, और हल्के हाथों से खेल दिया है। निश्चित ही क्षेत्र रक्षण, गेंद के पीछे गेंद क्षेत्ररक्षक के आगे, और 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति, और 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 110 रन बनाए हैं तखतपुर की टीम ने, और 111 रनों का लक्ष्य रखा है। माफ कीजिएगा, 111 रन बनाए हैं और 112 रनों का लक्ष्य रखा है लोरमी की टीम के सामने। निश्चित ही अच्छा मुकाबला, बड़ा मुकाबला। लोरमी में भी निश्चित ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। तो आगे की मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे बड़े भाई मयंक सिंह गौतम जी। सिद्धिविनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पमनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा, न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी, निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहर चंदानी, केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी, रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे,
GN Place, Proprietor Mr. Raktim Sarkhel. Brand Store Shoe Collection, Proprietor Mr. A.D. Tamrakar. Purnima Jewelers, Juni Line, Bilaspur, Proprietor Mr. Manoj Soni. Baker's Farm and Cafe Ibiza, Tarbahar Chowk, Proprietor Mr. Vishal Vidhani. Protein Hub, Proprietor Mr. Jishan Khan. Vinayak Realtors and Tourist Packages, Proprietor Mr. Ashish Kapoor. Aurora Traders, Sarkanda, Proprietor Mr. Manish Arora. Mamaya Tent and Caterers, Sarkanda, Proprietor Mr. Ravindra Devangan. Bilaspur Mobile Repairing and Training Center, Raju Plaza, Bilaspur, Proprietor Mr. Pintu Yadav. Car Garage, Sipat Chowk, Sarkanda, Bilaspur, Proprietor Mr. Pankaj Sahu. Siddhi Vinayak Traders, Proprietor Mr. Aman Diwan. Tuteja Furnitures, Proprietor Mr. Ashok Tuteja. Mahal Restaurant, Raipur Road, Bilaspur, Proprietor Mr. Bunty Pamnani. Hotel Jeet Continental, Siutaki Chowk, Bilaspur, Proprietor Mr. Pratik Upveja. New Goodwill Gift Corner, Proprietor Mr. Aman Kalwani. Nisha Daily Needs, Sarkanda, Proprietor Mr. Prakash Mehar Chandani. Cake Walkers, Proprietor Mr. Vicky Gondwani. Royal King, Proprietor Mr. Rajesh Pandey. GN Place, Proprietor Mr. Raktim Sarkhel. Brand Store Shoe Collection, Proprietor Mr. A.D. Tamrakar. Purnima Jewelers, Juni Line, Bilaspur, Proprietor Mr. Manoj Soni. Baker's Farm and Cafe Ibiza, Tarbahar Chowk, Proprietor Mr. Vishal Vidhani. Protein Hub, Proprietor Mr. Jishan Khan. Vinayak Realtors and Tourist Packages, Proprietor Mr. Ashish Kapoor. Aurora Traders, Sarkanda, Proprietor Mr. Manish Arora. Mamaya Tent and Caterers, Sarkanda, Proprietor Mr. Ravindra Devangan. Bilaspur Mobile Repairing and Training Center, Raju Plaza, Bilaspur, Proprietor Mr. Pintu Yadav. Car Garage. भाई शिवा कौशिक ने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज लोरमी के उतरते हुए, सचिन वॉरियर के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यहाँ पे उतरते हुए अनीश और रवि बल्लेबाजी की कमान संभालने आए हैं। सचिन वॉरियर के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं अनीश और नॉन स्ट्राइक पर हैं रवि। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज 112 रनों का टारगेट है, 112 रनों का लक्ष्य है दोस्तों। 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। देखना है अपनी टीम के लिए क्या भूमिका निभाते हैं, क्या योगदान देते हैं और इस मैच को इन दोनों ही मजबूत टीमों में से कौन सी वह टीम है जो जीतती है और विनीत कप के अगले चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करती है। बड़ा मुकाबला, बड़ा टूर्नामेंट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जाना माना टूर्नामेंट, जिसमें देश के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से टीमें आती हैं अपने खेल का जौहर दिखाने। रेडी है, ऑल सेट, उधर पूछ रहे हैं कंपायर, ठीक है। गेंदबाज कौन है भाई? पहले ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है सूरज ने। देखना है सूरज, तेज गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज सूरज, और सूरज की गेंद का सामना करेंगे अनीश। अच्छी गेंद, यहां पे ऊंची गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, सम्मान दिया बल्लेबाज अनीश ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिया बल्लेबाज को।
सम्मान देने पे मजबूर किया यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी का परिचय। यहाँ पे दिशा से भटके हैं सूरज और वाइट बॉल का इशारा आता हुआ हमारे सम्माननीय मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा, और अतिरिक्त रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अतिरिक्त रन नहीं देने होंगे ज्यादा। अब यहाँ पे हवा में गेंद है लेकिन कैच छूटा है उल्टे हाथ से। एक हाथ से कैच लेना चाह रहे थे। प्रवीण के द्वारा कैच छूटा है। एक हाथ से कैच लेना चाह रहे थे और जीवनदान मिला है अनीश को। और अब स्ट्राइक पर आ चुके रवि। पटकी हुई गेंद, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन खासा संपर्क नहीं हुआ। गेंद दो टप्पा सीधा गेंदबाज सूरज के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज प्रहार करना चाह रहे हैं लेकिन उनको प्रहार करने का मौका नहीं दे रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सूरज सटीक गेंदबाजी का परिचय देते हुए यहाँ पे प्रहार किया है। क्षेत्र रक्षण मौजूद और एक आसान सा कैच। इसी के साथ ही पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे सचिन वॉरियर लोरमी को। विनय कैच लिया है। विनय ने सीमा रेखा पे खड़े, फील्डर है, क्षेत्र रक्षण है, बहुत ही अच्छा कैच लिया। अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए यहाँ पे सूरज रवि को पवेलियन की राह दिखाई है। और अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। नीरज पिच की ओर बढ़ते हुए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सूरज की, पहले ही ओवर में सफलता हासिल की है। लगातार बल्लेबाज को चकमा दे रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी दिखानी होगी क्योंकि 112 रनों का जो लक्ष्य दिया है, टारगेट दिया है, वह अच्छा बड़ा लक्ष्य है। और अब स्ट्राइक पर हैं नीरज जो कि सामना करेंगे सूरज की गेंद का। पटक कर फेंकी हुई गेंद धीमे बल्ले से खेली ऑफ साइड की दिशा पे थर्ड मैन के पास। एक रन आसानी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 3 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी सूरज के द्वारा और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं अनीश। अच्छी गेंद लेकिन देखकर खेला, टाइमिंग भरा शॉट दोनों ही फील्डर के बीच से और क्षेत्र रक्षण जूझते हुए और अच्छा क्षेत्र रक्षण किया है। यहाँ पे निश्चित तौर पे 2 रन जरूर बचाए हैं टीम के लिए लेकिन 2 रन तेजी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पे। और इसी के साथ ही पहले ओवर का पतन हुआ है दोस्तों। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिया यहाँ पे सूरज ने। 1 विकेट लिया, 5 रन आए हैं इस ओवर में, पहले ओवर में। अब देखना है दूसरे ओवर की गेंदबाजी की कमान किसके हाथों में दी जाती है। राहुल के हाथों में दी गई है यहाँ पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी की कमान। हाँ, राहुल दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं एवेंजर स्टार के राहुल की गेंद का सामना करेंगे नीरज। फुल टॉस गेंद दे मारा है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए 4 रन मिलते हुए और इसी 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रनों पर। फुल टॉस गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया, दे मारा ऑफ साइड की दिशा पे सीमा रेखा के बाहर। अगली गेंद सामना करते नीरज। फिर से प्रहार किया है, गेंद हवा में सीमा रेखा के बाहर। 104 मीटर ऊंचा लंबा छक्का लगता हुआ यहां पे नीरज के बल्ले से।
राज लगातार 2 गेंदों पे 10 रन आए हैं, थोड़े भारी साबित होते हुए। जैसा कि पहले ओवर में कम रन आए थे, विकेट मिला था, दूसरे ओवर की शुरू ही 2 गेंदों पे कस के प्रहार किया है नीरज ने। 2 गेंदों पर 10 रन जोड़े हैं अपने व अपनी टीम के लिए। ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी, नियंत्रण में बल्लेबाजी करनी होगी, देखकर बल्लेबाजी करनी होगी अगर 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है। अगली गेंद राज की, बेलतरा इंड से गेंदबाजी करते, सामना करते बल्लेबाज नीरज। फिर से प्रहार किया है, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके, और 6 रन लेग साइड की दिशा पे सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नीरज आए हैं 1 डाउन बल्लेबाजी करने, और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का परिचय दे रहे हैं। लगातार 3 गेंदों पर 16 रन जोड़े हैं, 3 गेंदों पर लगातार बाउंड्रीज दिखाई है, 2 छक्के 1 चौवा लगाया है नीरज ने। राज का मनोबल पूरी तरीके से तोड़ते हुए, गेंदबाज की कमर तोड़ते हुए बल्लेबाज नीरज। इस बार गति में परिवर्तन किया, चकमा देना चाह रहे थे लेकिन धीमे बल्ले से खेला है, थर्ड मैन नहीं लगाया था, लेकिन 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डर मौजूद, तेजी से दौड़ के लपक लिया गेंद को। नीरज दोस्तों कप्तान हैं और कप्तानी पारी खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पर नीले कलर की कैप लगाए नीरज, और स्ट्राइक पर आप आ चुके हैं अनीश। प्रहार किया है, यहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक टप्पा सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ हमारे युवा यंग डैशिंग अंपायर, अनुभवी अंपायर करण मेहता जी के द्वारा, और इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 26 रनों पर। भारी ओवर साबित होता हुआ यहां पे एवेंजर स्टार का ये राज गेंदबाजी पर, और फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, लेकिन फील्डर मौजूद यहां पे अभिषेक। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दूसरे ओवर का पतन हुआ है दोस्तों। 2 ओवर की समाप्ति पर सचिन वॉरियर का कुल योग जा पहुंचा 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वापसी करते हुई यह टीम सचिन वॉरियर लोरमी की। पहला ओवर हालांकि ज्यादा रन नहीं बने थे, 1 विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन नीरज ने आके, कप्तान ने आके कप्तानी पारी खेलनी शुरू की है अभी दोस्तों। लेकिन नीरज को मैच को ऐसे ही खेलते हुए ऐसे ही आगे ले जाना पड़ेगा जिससे यह मैच वह जीत पाए, देखना है। लेकिन विनीत कप दोस्तों अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना नामुमकिन है अभी। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है एवेंजर स्टार तखतपुर के कपिल ने, और कपिल की गेंद का सामना करेंगे सूरज, सॉरी दोस्तों सूरज ने संभाली है तीसरे ओवर की गेंदबाजी की कमान, और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं सूरज। अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा, एवेंजर स्टार के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं सूरज, और सूरज की गेंद का सामना करेंगे कप्तान नीरज, जो कि कप्तानी पारी खेल रहे हैं। देखना है मैच को कहां तक खींच के ले जा पाते हैं। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी करते सूरज, सामना करते बल्लेबाज नीरज, और यहां धीमे बल्ले से खेली, थर्ड मैन मौजूद, लेकिन तेजी से 1 रन चुरा लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने आपसी तालमेल बहुत ही खूब नजर आता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, नीरज और अनीश के बीच में। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं अनीश, धीमे खेल रहे हैं अनीश, अपने विकेट के महत्व को समझ रहे हैं। सूरज की अगली गेंद सामना करते अनीश। इस बार धीमे बल्ले से खेला था, कैच लेना जरूर चाह रहे थे अभिषेक, लेकिन गेंद हवा में थी। यहां पे 1 रन बखूबी पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 28 रनों पर।
और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं नीरज, सामना करेंगे सूरज की गेंद का। वह बल्ला पलटाकर मारना चाह रहे थे, संपर्क नहीं हुआ। गेंद और बल्ले का अपील जरूर हुई थी यहां पे दोस्तों, अपील हुई थी, लेकिन भरोसा नहीं दिखा हमारे अनुभवी अंपायर नितेश राय जी को, नकारा। करीबी मामला जरूर हो सकता था, ऐसे समय में ऐसे शॉट लगाना थोड़ा खतरनाक जरूर होगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंदबाज सूरज दिशा खो बैठे। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और एक और अतिरिक्त रन जुड़ते हुए सचिन वॉरियर लोरमी के खाते में, और इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का बढ़ता योग 29 रनों पर जा पहुंचा है। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा प्रहार किया, क्षेत्र रक्षक मौजूद, और यहां पे कैच आउट होते हुए कप्तान नीरज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना आपा खोया, विकेट खोया। यहां पे आउट होकर पवेलियन की राह वापस लौटनी होगी यहां पे नीरज को। कप्तान निराश पवेलियन की ओर लौटते हुए, अब फिर थोड़ी सी डगमगाई है यहां पे पारी सचिन वॉरियर की। अच्छे बल्लेबाज, प्रहारक बल्लेबाज कप्तान नीरज पवेलियन की राह लौटते हुए। देखना है अब नए बल्लेबाज कौन आते हैं सचिन वॉरियर लोरमी के, और क्या वो टीम को संभाल पाते हैं। सचिन, यहां पे अनीश हैं, अभी भी टिके हुए हैं और संभल कर खेल रहे हैं। उनको किसी पार्टनर की आवश्यकता है जिसके साथ वो साझेदारी कर सके और मैच को आगे ले जा सके, मैच को जीत सके। अनीश ओपनर बल्लेबाज के तौर पे आए थे और अभी तक टिके हुए हैं दोस्तों। नए बल्लेबाज आए हैं हेमंत। सूरज, अच्छी गेंदबाजी, नीरज को फंसाया अपनी गेंद के जाल में। यॉर्कर गेंद थी, लेकिन उसको फुल टॉस बना के खेला सीधे बल्ले से स्टेट साइड की दिशा पे, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं अनीश। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी करते हुए सूरज की गेंद का सामना करते अनीश। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके मारना चाह रहे थे, लेकिन जुचकाया और लेग स्टंप पर जाकर पड़ती हुई यह गेंद। क्लीन बोल्ड होते हुए यहां पे अनीश अपना आपा खोया। यहां पे संभल के खेलना था, देख के खेलना था, लेकिन प्रहार करना चाह रहे थे, बड़े हिट लगाना चाह रहे थे, अपना आपा खोया और पवेलियन की ओर निराश होकर लौटते हुए अनीश। और यहां पे सचिन वॉरियर लोरमी की पारी दोस्तों लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई। संभालना होगा बल्लेबाजों को इस मैच को। एवेंजर स्टार तखतपुर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए यहां पे विनीत कप के इस मैच में, आज का यह तीसरा व अंतिम रोमांचक मैच, दोनों ही मजबूत टीमें सचिन वॉरियर लोरमी बनाम एवेंजर स्टार तखतपुर आपस में भिड़ती हुई। नए बल्लेबाज आए हैं सुमन। गेंदबाजी की कमान संभाली है कपिल ने। चौथा ओवर लेकर आए हैं सचिन वॉरियर के लिए कपिल। अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं और सचिन कपिल की गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज हेमंत। उल्टे हाथ के बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन
बेलतरा इंड से गेंदबाजी करते कपिल। कपिल की गेंद का सामना करेंगे हेमंत। देखना है दोस्तों क्या होता है इस गेंद में, अत्यंत रोमांचक इस मैच में। प्रहार किया है और क्षेत्ररक्षण मौजूद, एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। यहां पे प्रहार करना चाह रहे हैं सचिन वॉरियर लोरमी के बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज मौका नहीं दे रहे हैं। सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार लाइन लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छे क्रिकेट का परिचय देते हुए, अच्छे खेल का परिचय देते हुए यहां पे खिलाड़ी। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं ऑरेंज कैप पहने हुए बल्लेबाज सुमन। अच्छी गेंद, लेग स्टंप पे गेंद थी, धीमे बल्ले से खेला, लेकिन लेग साइड की दिशा पे क्षेत्ररक्षक मौजूद। एक रन लेकिन तेजी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। यहाँ पे लगातार सिंगल डबल ले रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, एक एक रनों के महत्व को समझ रहे हैं। अच्छा खेल, संभल के बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट बचाकर खेलना होगा। 112 रनों का लक्ष्य है, उसको पीछा करते उतरी है सचिन वॉरियर की टीम। और अब स्ट्राइक पर है हेमंत, सामना करते कपिल की गेंद का। अच्छी गेंदबाजी, तेज गति की गेंदबाजी, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए कपिल। यहां पे प्रहार किया है, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है और लपक लिया है यहां पे गेंद को अपने हाथों में। विनय ने बहुत ही अच्छा कैच लिया, पास आने के बाद कॉल किया कि वेट, मैं ही लूंगा इस कैच को। अच्छा कैच लिया है विनय ने। गेंद काफी ऊपर थी, जज करना मुश्किल होता है दोस्तों। अच्छा जजमेंट यहाँ पे विनय का, एक आसान सा कैच बनाया इसको, कठिन कैच को। और हेमंत पवेलियन की ओर लौटते हुए। नए बल्लेबाज आए हैं विक्की। देखना है दोस्तों विक्की क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। विक्की और सुमन दोनों ही बल्लेबाज अभी मौजूद हैं। कपिल विकेट लिया, बहुमूल्य विकेट अपनी टीम के लिए। कपिल की गेंद का सामना करते सुमन। यहां पे बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था लेकिन कैच छूटा है दोस्तों। एक रन तेजी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। कैच छूटा है दोस्तों, देखना यह है मैच छूटा है या नहीं। संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। सुमन को एक जीवन दान जरूर मिला है दोस्तों। बाहर जाती गेंद को खेल बैठे थे, करीबी मामला हो सकता था। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं विक्की, सामना करेंगे कपिल की गेंद का। अच्छी गेंद, अपील जरूर हुआ है, पैरों पर लगी गेंद, नकारा युवा अनुभवी सम्माननीय अंपायर बड़े भैया करण मेहता जी के द्वारा नकारा गया। बाहर जाती हुई गेंद थी। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई है दोस्तों। 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मैच, अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है दोस्तों। विनीत कप का आज का यह तीसरा व अंतिम मुकाबला। इस गुलाबी ठंड में भी आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों। इसी जज्बे के साथ, आपके इसी उत्साह को देखते हुए विनीत कप की लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की यह जो टीम है दोस्तों, हर वर्ष इस प्रतियोगिता, इस महासंग्राम को आप लोगों के बीच पहुंचाने में, आप लोगों के मनोरंजन के लिए लग जाती है दोस्तों अपने तन मन धन से। और इस पिच को अपने पसीने से सींच के बनाते हैं आयोजन समिति के हमारे सभी भाई, सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे विनय गेंदबाजी पर है। पहली गेंद दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ हमारे सम्माननीय मुख्य निर्णायक बड़े भाई रितेश राय जी के द्वारा। विनय की गेंद का सामना करते उल्टे हाथ के बल्लेबाज विक्की।
कदमों का इस्तेमाल करके प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन जुझकाया बुरी तरीके से अपनी गेंदबाजी से यहां पे विनय ने। धीमी गति की गेंद फेंकी, प्रहार करना चाह रहे हैं विक्की, बड़े बड़े शॉट लगाना चाह रहे हैं। देखना है अगली गेंद में क्या होता है दोस्तों। इस बार प्रहार किया है स्ट्रेट साइड की दिशा पे, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं सुमन, जो कि ऑरेंज कलर की कैप पहने हुए हैं दोस्तों। सामना करेंगे बिलासपुर इंड से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज विनय की गेंद का। पिछले ओवर में एक जीवन दान जरूर मिला था सुमन को, देखना है उस जीवन दान का क्या फायदा उठा पाते हैं दोस्तों सुमन। प्रहार किया है स्ट्रेट साइड की दिशा पे, लेकिन जमीन से खेला हुआ शॉट, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। लगातार सिंगल डबल ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, लेकिन एक एक रन से काम नहीं चलेगा। यहां कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। फिर प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, फिर से धीमे गति की गेंदबाजी, लगातार गति में परिवर्तन करते हुए विनय। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए अनुभवी गेंदबाज विक्की, संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार दिशा से भटके हैं बुरी तरह विनय, और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ सचिन वॉरियर के खाते में। और इसी एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का बढ़ता योग 38 रनों पर जा पहुंचा है। ओवर पिच गेंद थी, प्रहार किया, लेकिन अच्छा फील्डिंग देखने को मिला, अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला अभिषेक के द्वारा। यहां पे कदमों से गेंद को रोका, बहुत दूर थी। विनय की अगली गेंद, सामना करते विक्की, फिर यहां पे दिशा से भटके हैं विनय। वाइड बॉल आती हुई, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां पे। लगातार यहां पे अलग अलग दिशा में गेंदबाजी करने के कारण थोड़ा दिशा से भटक जा रहे हैं विनय। 3 वाइड बॉल फेंक चुके हैं, 3 अतिरिक्त रन दे चुके हैं। अगली गेंद, सामना करते विक्की, कदमों का इस्तेमाल करके प्रहार किया है। इस बार क्षेत्ररक्षक मौजूद और लपक लिया है गेंद को अपनी हाथों में, और कैच आउट होते हुए यहां पे विक्की पवेलियन की ओर निराश लौटते हुए। नए बल्लेबाज आए हैं संतोष, आप सभी देख सकते हैं पिच की ओर आते हुए संतोष। लेकिन यहां पे संतोष को संतोष से ही बल्लेबाजी करनी होगी, संतुष्ट होकर बल्लेबाजी करनी होगी। यहां पे लड़खड़ाती अपनी टीम सचिन वॉरियर लोरमी को संभालना होगा। विनय विकेट लिया है, कैच भी पकड़ा था इसके पहले वाले ओवर में। अच्छा क्रिकेट का परिचय देते हुए विनय, अपने टीम के लिए अच्छा योगदान देते हुए विनय। और अब नए गेंदबाज आए हैं अनीश, और अनीश की गेंद का सामना करेंगे सुमन। बेलतरा इंड से गेंदबाजी करते हैं अनीश। प्रहार करा है यहां पे, थर्ड मैन मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सुमन प्रहार करना चाह रहे हैं, लेकिन बल्ला खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं यहां पे गेंदबाज एवेंजर स्टार के अनीश। देखना है अगली गेंद पर क्या होता है दोस्तों। प्रहार किया है इस बार खुल के, और कनेक्टिंग इंडिया दोस्तों। 106 मीटर लंबा ऊंचा छक्का, जो जीवन दान मिला था उसका फायदा उठाते हुए सुमन अपने टीम के लिए रन जोड़ते हुए। ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे, प्रहार करना होगा अगर इस मैच को जीतना है और विनीत कप के अगले चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है। तो फिर से प्रहार किया है स्ट्रेट साइड की दिशा पे। क्षेत्ररक्षक विनय मौजूद थे, लेकिन कूदे हैं यहाँ पे, लेकिन गेंद को नहीं पाए। और 4 रन, एक टप्पा सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों का इशारा आता हुआ, और नो बॉल
नो बॉल करार दिया गया है। फ्री हिट का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक युवा अनुभवी करण मेहता जी के द्वारा लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए बड़े भाई रितेश राय जी। फ्री हिट है। सुमन इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे और देखना है क्या होता है इस फ्री हिट में। अत्यंत रोमांचक आज का यह मैच, आज की यह गेंद और प्रहार किया है, गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद, कैच ले लिया है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा थ्रो, तेज थ्रो देखने को मिला यहाँ पे। फ्री हिट का फायदा उठाना चाह रहे थे सुमन, प्रहार किया लेकिन अच्छे खासा कनेक्ट नहीं हो पाया। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं संतोष। प्रहार किया है संतोष ने लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी, चकमा दिया। लगातार 2 अच्छी गेंद फेंकी है यहाँ पे। दूसरी गेंद पे हालांकि थोड़ा भटके थे जिसको सुमन ने प्रहार किया, उसके बाद एक कमबैक देखने को मिला है यहाँ पे अनीश के द्वारा। बेलतरा इंड से गेंदबाजी करते अनीश की गेंद का सामना करेंगे संतोष। प्रहारक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं संतोष। प्रहार किया है और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक करण मेहता जी के द्वारा यहाँ पे। और इसी 6 रन के साथ टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 57 रनों पे दोस्तों। 2 छक्के आए हैं इस ओवर में। अनीश महंगे साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी सचिन वॉरियर लोरमी को। और फिर से प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति दोस्तों। 6वें ओवर का पतन हुआ है। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम सचिन वॉरियर लोरमी का बढ़ता योग जा पहुंचा है 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अत्यंत रोमांचक यह मैच। दोनों ही टीमें अपना पूरा दमखम लगाती हुई और दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत टीमें हैं दोस्तों। लोरमी तखतपुर की ये दोनों ही टीमें हैं बहुत ही मजबूत टीमें और एक दूसरे को पछाड़ने के लिए यहाँ पे अपना जी जान लगा के खेल दिखाते हुए। ये दोस्तों खेल भावना यही होती है जब आप एक टीम वर्क के साथ खेलें, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे अकेले नहीं खेला जा सकता। जब 11 प्लेयर एक साथ एक टीम वर्क से खेलते हैं तभी मैच को जीता जा सकता है। कोई एक प्लेयर इसमें दोस्तों कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम को अपना 100% देना होता है। 24 गेंदों पर 55 रनों की दरकार। अगर सचिन वॉरियर को यह मैच जीतना है और विनीत कप के दूसरे चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है तो गेंदबाजी की कमान संभाली है 7वें ओवर की विनय ने। अपने कोटे का दूसरा व टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए हैं विनय बिलासपुर इंड से गेंदबाजी करते हुए। और विनय की गेंद का सामना करेंगे ऑरेंज कलर की कैप पहने बल्लेबाज सुमन। पटक कर फेंकी गेंद ऑफ साइड की दिशा पर दे मारा है, टाइमिंग भरा शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद सीमा रेखा के पास। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रहारक छोर पर संतोष, जिन्होंने पिछले ओवर में बहुत ही जोरदार छक्का लगाया था। प्रहारक बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है और अकेले ही मैच को जिताने का जज्बा रखते हैं। हमने बहुत सुना है इनके बारे में कि ऊंचे ऊंचे छक्के चौके लगाते हैं। प्रहारक बल्लेबाज है संतोष और प्रहार किया है लेकिन खासा संपर्क नहीं हो पाया बल्ले से, लेकिन 1 रन तेजी से चुराने में कामयाब हो गए दोनों ही बल्लेबाज। यहाँ पे लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल डबल भी जहां पे आ रहे हैं वहां पे बखूबी ले रहे हैं, एक एक रनों के महत्व को समझते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज। और अब प्रारंभ छोर पर आ चुके हैं सुमन। धीमी गेंद
चकमा दिया सुमन को, प्रहार करना चाह रहे थे विनय ने। अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए विनय अच्छे खेल का परिचय दिया है, अपने टीम के लिए अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। यहाँ पे बिलासपुर इनसे गेंदबाजी करते विनय, सामना करेंगे सुमन। पटक कर फेंकी गेंद, लेकिन गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद और कैच छूटा है दोस्तों। और यहाँ पे 2 रन तेजी से दौड़ गए सुमन। अच्छी साझेदारी, अच्छी तालमेल देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। दूसरा यहाँ पे दूसरी बार जीवन दान मिला है यहाँ पे सुमन को। देखना है जीवन दान का क्या फायदा उठाते हैं। और प्रहार किया है सीमा रेखा के बाहर, स्ट्रेट साइड की दिशा पर 6 रनों के लिए। 6 रन का इशारा आता हुआ हमारे सम्माननीय मुख्य निर्णायक रितेश राय जी के द्वारा। यहाँ पे 2 जीवन दान मिले हैं सुमन को और उस जीवन दान का भरपूर फायदा उठाते हुए छक्का जड़ा है। अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया है सुमन, अभी भी मौजूद हैं दोस्तों। और कुछ भी हो सकता है। अच्छे बल्लेबाज, अच्छे खेल का, अच्छे बल्लेबाजी का परिचय देते हुए विनय गेंदबाज चकमा देना जरूर चाहते हैं। इसके पहले की धीमी गति में गेंद फेंकी थी, गति में परिवर्तन किया था, तेज गति की गेंद फेंकी थी, लेकिन जिसको सुमन ने पढ़ लिया था, पढ़ के बल्ला दे घुमाया स्ट्रेट साइड की दिशा पे 6 रनों के लिए। और इसी 6 रन के साथ टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 67 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर, कन्या खेल परिसर के मैदान पर। तालीस रनों की दरकार अगर सचिन वॉरियर को यह मैच जीतना है तो। दोनों ही प्रहारक आक्रामक बल्लेबाज मौजूद। दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना नामुमकिन है, कुछ भी अंदाजा लगाना दोस्तों अभी सही नहीं होगा। दोनों ही टीमें मजबूत टीमें हैं और एक दूसरे को पछाड़ने का दम रखती हैं दोस्तों। मजबूत टीमें भिड़ती हुई विनीत कप के आज के इस तीसरे दिन के तीसरे व अंतिम मुकाबले में महाराम में दोस्तों, जिसे हम सभी बिलासपुर का त्योहार, छत्तीसगढ़ का त्योहार के नाम से जानते हैं दोस्तों। विनय की अगली गेंद, सामना करते सुमन, धीमे बल्ले से खेली है, यहाँ पे धीमी गेंद थी, दूसरा रन चुराना चाह रहे थे यहाँ पे सुमन, लेकिन संतोष ने मना किया। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति, 7वें ओवर का पतन हुआ है। 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 10वां गौरवशाली वर्ष दोस्तों, आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का, दर्शक भाइयों बंधुओं का, और जो घर बैठे विनीत कप का लुत्फ उठा रहे हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। जिस प्रकार आप सभी हमारा साथ देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, विनीत कप का लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन का उत्साह बढ़ाते हैं, उसी उत्साह को मद्देनजर रखते हुए, उसी उत्साह को देखते हुए दोस्तों, हम भी अति उत्साहित होके विनीत कप के इस महासंग्राम में अपने मेहनत से, तन मन धन से जुड़ जाते हैं। इस विशाल महाआयोजन को आप सब तक पहुंचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, भारत देश के एक एक घर तक पहुंचाने के लिए फोन के, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। और
इसी का नतीजा है दोस्तों, जो आप सभी देख सकते हैं कि बहुत सी प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और कभी ना कभी उसे थमना पड़ता है। लेकिन विनीत कप है दोस्तों जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी को कहते हैं दोस्तों जोश, जज्बा और आप सभी का प्यार। और कहीं नहीं दोस्तों, सिर्फ सीपत रोड SCCL मुख्यालय के सामने खेल परिसर के मैदान पे। आठवें ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है कपिल ने, और कपिल की गेंद का सामना करेंगे सुमन। अच्छे बल्लेबाज, प्रहारक बल्लेबाज सुमन अभी भी डटे हुए हैं। देखना है क्या होता है इस गेंद पे। प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ बल्ले से, गेंद पैरों पर लगी लेकिन बाहर जाती हुई गेंद, कोई अपील नहीं हुआ था। नो बॉल का इशारा आता हुआ सम्माननीय लेग अंपायर के द्वारा, यहां पे रितेश राय जी के द्वारा, गुड्डा भैया के द्वारा, मुख्य निर्णायक लेग अंपायर का निर्णय सर्वमान्य रहेगा दोस्तों। और फ्री हिट का इशारा आता हुआ, फ्री हिट का क्या फायदा उठाते हैं संतोष। अतिरिक्त रन भी आएगा एक, गेंद काउंट भी नहीं होगी बॉल, अतिरिक्त 2 रन आते हुए बिना किसी बॉल के विनय। अतिरिक्त रनों पर रोक लगानी होगी, रनों के महत्व को समझना होगा दोस्तों, क्योंकि विनीत का एक एक रनों का यहाँ पे महत्व है दोस्तों। संतोष फ्री हिट का फायदा उठाते हुए शॉर्ट पिच गेंद को दे मारा है सीमा रेखा के बाहर, लेग साइड की दिशा पे 114 मीटर ऊंचा लंबा गगनचुंबी छक्का लगता हुआ संतोष के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज नजरें गड़ सी चुकी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दर्शकों की थोड़ी सांसें थम भी चुकी है दोस्तों। बता देना चाहूंगा अत्यंत रोमांचक यह मैच डू और डाई रेट चलती हुई, दोनों ही मजबूत टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए मैदान में मेहनत करती हुई। और यहाँ पे दिशा से भटके गेंदबाज विनय, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ हमारे युवा अनुभवी अंपायर बड़े भैया करण मेहता जी के द्वारा। अतिरिक्त रनों पर रोक लगाना होगा दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं। संतोष विनय के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहार किया है, ओवर पिच गेंद थी, 2 रन लेना चाह रहे हैं सुमन, लेकिन संतोष पहुंच नहीं पाए थे, मना किया संतोष ने। और यहां पे लगातार बाउंड्रीज मारने के बाद, चौके छक्के जड़ने के बाद दोनों ही बल्लेबाज एक एक रनों को ले रहे हैं, सिंगल डबल के महत्व को समझ रहे हैं। वाह, बहुत ही रोमांचक मैच। यहां पे अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, प्रहार करना चाह रहे थे सुमन, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, डॉट बॉल आती हुई। ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी, सूझबूझ कर गेंदबाजी होगी, लगातार लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी। यहां पे ओवर पिच गेंद जिसको फ्लिक किया है, एक टप्पा सीमा रेखा पर खड़े क्षेत्ररक्षक के पास, 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा शॉट लगाया था यहां पे, लगातार एक एक रन चोरी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं संतोष, कदमों का इस्तेमाल करके मारना चाह रहे थे, अपील हुई है, लेकिन यहां पे अपील में दम नहीं दिखा हमारे मुख्य निर्णायक अनुभवी करण मेहता जी को, नकारा बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन तेजी से 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आपसी तालमेल बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में दोस्तों। यहां पे सुमन स्ट्राइक पर प्रहार किया है, यहां पे क्षेत्ररक्षक मौजूद, लेकिन उनके ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए सुमन बखूबी अच्छे बल्लेबाज के रूप में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, अच्छे बल्लेबाजी का परिचय दे रहे हैं। 2 बार उनका कैच छूटा है, 2 जीवन दान मिले हैं, लेकिन उस जीवन दान का अच्छा फायदा उठाते हुए ओवर की समाप्ति हुई है, 8वें ओवर का पतन हुआ है। 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता योग जा पहुंचा है 86 रन
5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोनों ही प्रहारक आक्रामक बल्लेबाज जिनकी साझेदारी, अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही है, तालमेल अच्छा देखने को मिल रहा है। संतोष और सुमन अभी भी पिच पे मौजूद। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना अभी नामुमकिन है दोस्तों। अत्यंत रोमांचक विनीत कप के खेल परिसर मैदान के इस मैच पे 12 गेंदों पर 26 रनों की दरकार अगर सचिन वॉरियर लोरमी को यह मैच जीतना है और विनीत कप के अगले चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है तो। बारह गेंदों पर 26 रनों की दरकार। बहुत ही रोमांचक हो चुका है यह मैच। शुरू में थोड़ी खड़ाई जरूर थी सचिन वॉरियर की पारी शुरू के पहले और तीसरे ओवर में, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है। अच्छी साझेदारी देखने को मिली है यहाँ पे सुमन और संतोष के बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए, अपने महत्व को समझते हुए विनीत कप जान रहे हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं दोस्तों। गुप्त सूत्रों से हमें अपने वॉलेंटियर के माध्यम से पता चला है कि आईपीएल की, बीसीसीआई के भी लोग यहाँ पे अपने नजरें गड़ा के दूरबीन से देखते रहते हैं कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो उम्दा खेल का प्रदर्शन करेगा। उसका सिलेक्शन भी हो सकता है और सभी क्रिकेट भावना से, खेल भावना से अपने खेल का जौहर दिखाते हुए यहाँ पे, और कहीं नहीं दोस्तों, सीपत रोड एससीसीएल मुख्यालय के सामने खेल परिसर के मैदान में इंडिया में दोस्तों 9वें ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है राहुल ने, और राहुल की गेंद का सामना करेंगे सीधे हाथ के आक्रामक बल्लेबाज संतोष। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी करते राहुल की गेंद का सामना करेंगे संतोष। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, प्रहार करना चाह रहे थे, खासा संपर्क नहीं। क्षेत्ररक्षक मौजूद यहाँ पे अभिषेक, अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला यहाँ पे अभिषेक के द्वारा। इस मैच में हमने देखा है कि जब जब अभिषेक के पास गेंद गई है उनके द्वारा अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है। चुस्त दुस्त खिलाड़ी। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं ऑरेंज कैप पहने हुए सुमन। धीमी गेंद पढ़ लिया था और सोच समझकर बल्ला उठाया। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाती हुई लेग साइड की दिशा पे 6 रनों के लिए 98 मीटर ऊंचा लंबा गगनचुंबी छक्का लगता हुआ सुमन के बल्ले से। यह वही सुमन है दोस्तों जिनका कैच छूटा था, लेकिन वही खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा बल्लेबाज होता है दोस्तों, जो अपने बल्लेबाजी के महत्व को समझे, अपने खेल के महत्व को समझे। उनको जीवन दान मिला था और उस जीवन दान को उन्होंने बखूबी उसका इस्तेमाल किया, बखूबी फायदा उठाया। सूझबूझ से खेल रहे हैं, समझकर खेल रहे हैं। गेंद को पढ़ लिया था पहले ही कि धीमे गति की गेंद फेंकना चाह रहे हैं राहुल, और गेंद को सोचा समझा पढ़ा, और जब शॉर्ट पिच गेंद आई धीमी गति की तो उसे दे मारा सीधा सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही अच्छे खेल का परिचय देते हुए यहाँ पे गेंदबाजी थोड़ी सी ढीली पड़ती हुई एवेंजर स्टार तखतपुर की। शुरू के ओवरों में जैसी गेंदबाजी देखने को मिली थी उस हिसाब से लग रहा था कि खेल एक तरफा खींचा चले जाएगा, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को लगातार बताते आ रहा हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें मजबूत टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए विनीत कप के इस महासंग्राम में एक दूसरे से भिड़ती हुई मजबूत टीमें, बड़ी टीमें। 10 गेंदों पर 19 रनों की दरकार अगर सचिन वॉरियर लोरमी को यह मैच जीतना है तो। 10 गेंदे 19 रन, डू और डाई रेट चलती हुई दोस्तों। और इस अत्यंत रोमांचक मैच का लुत्फ उठाते मंच पर उपस्थित अतिथिगण, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, जो इस गुलाबी रात में, इस गुलाबी ठंड में भी हमारा साथ दे रहे हैं। दर्शक
और वह दर्शक जो फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे विनीत कप का लुत्फ उठा रहे मेरे दर्शकों, भाइयों बहनों, माताओं, सबको, आमजनों को विनीत कप के तरफ से हमारा प्रणाम, नमस्कार। सुमन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, इसके पहली गेंद पे छक्का जड़ा था राहुल को। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी करते हुए राहुल की गेंद का सामना करेंगे ऑरेंज कैप पहने हुए सुमन। इस बार ओवर पिच गेंद थी, प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन लपक लिया राहुल ने। करीबी मामला हो सकता है और आउट करार दिए गए, रन आउट हुए। तालमेल थोड़ा सा बिगड़ा यहां पे। गेंद हाथ में थी, संतोष देख चुके थे कि दौड़ेंगे तो आउट हो सकते हैं, मना किया, लेकिन सुमन काफी आगे निकल चुके थे उस वक्त तक क्रीज से और रन आउट होते हुए लैग अंपायर यहां पे करण मेहता जी, युवा अनुभवी अंपायर, खुद भी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। अच्छा निर्णय। सुमन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन यहां पे थोड़ा सा अपना आपा खोया है, विकेट खो बैठे हैं रन आउट होते हुए। नए बल्लेबाज आए हैं कृष्णकांत। देखना है क्या भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए। सुमन अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा अपना आपा खोया और जिसका खामियाजा उनको अपने विकेट के रूप में भुगतना पड़ा, उनको और उनकी टीम को। नए बल्लेबाज आए हैं कृष्णकांत। देखना है ये कृष्ण कन्हैया क्या कर पाते हैं यहाँ पे, क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं कृष्णकांत और सचिन वॉरियर को विनीत कप के अगले चरण में पहुंचा पाते हैं या नहीं। तखतपुर एवेंजर 11 वापसी करती हुई। देखना है इस मैच में क्या होता है। अब प्रहार किया है यहां पे लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं संतोष, जो कि काफी देर से टिके हुए हैं, नजरें गड़ सी चुकी हैं उनकी इस पिच पे और सोच समझ कर खेल रहे हैं। प्रहारक बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है संतोष, और संतोष सामना करेंगे राहुल की गेंद का। अच्छी गेंद यहां पे यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, प्रहार करना चाह रहे थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगी और एक टप्पा सीधा कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। छक्का जरूर लगा था राहुल को लेकिन उसके बाद एक गेंदबाजी में कमबैक देखने को मिला है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार झुझकाने में सफल हो रहे हैं बल्लेबाज को। संतोष जो कि अनुभवी बल्लेबाज हैं उनको झुझका रहे हैं अच्छी गेंदबाजी का परिचय देते हुए। प्रहार किया है लेकिन इस बार संतोष ने गेंद पर चढ़कर मारा, फांप लिया था गेंद को। तेज गति की गेंद फेंकेंगे ओवर पिच और पीछे हटकर खेला हुआ शॉट सीमा रेखा के बाहर। 104 मीटर ऊंचा लंबा छक्का और इसी छक्के के साथ 100 रन पूरे हुए हैं। टीम के जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें दोस्तों। 100 रन पूरे किए हैं सचिन वॉरियर लोरमी ने। अच्छी भूमिका अदा करते हुए संतोष यहां पे टिक कर खेल रहे हैं। जान रहे हैं कि कोई सपोर्ट में मिले, कोई पार्टनर मिले, कोई अच्छा साझेदार मिले तो अकेले मैच को खींच कर ले जा सकते हैं। काफी बार ऐसा देखने को मिला है संतोष के द्वारा दोस्तों। देखना है आज क्या करते हैं संतोष। 6 गेंदों पर 12 रनों की दरकार। 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल योग जा पहुंचा है 100 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अभी भी संतोष मौजूद है दोस्तों, और संतोष हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल है दोस्तों। 10वां व अंतिम ओवर लेकर आए हैं एजाज, और एजाज की गेंद का सामना करेंगे कृष्णकांत।
देखना है ये कृष्णा क्या कर पाता है दोस्तों। 6 गेंदों पर 12 रनों की दरकार। जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि सचिन वॉरियर की पारी थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर थी, हमें लग रहा था कि एक तरफा वन साइडेड हो जाएगा यह मैच, लेकिन वन साइडेड नहीं हुआ यह मैच। विनीत का क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया यहां पे सचिन वॉरियर के बल्लेबाजों ने। मैच को अंतिम ओवर तक खींच कर लेके आए हैं, अंतिम ओवर तक का रोमांच लेकर आए हैं। फुल टॉस गेंद, कदमों का इस्तेमाल करके प्रहार करना चाह रहे थे, कोई संपर्क नहीं, लेकिन तेजी से 1 रन चुरा लिया यहां पर संतोष ने। बहुत ही तेज है संतोष, चुस्त हैं, एकदम फुर्तीले हैं और अब प्रहारक छोर पर आ चुके हैं संतोष। दोस्तों देखना है क्या होगा। 5 गेंदे 11 रनों की दरकार अगर सचिन वॉरियर लोरमी को यह मैच जीतना है और विनीत कप के अगले चरण में अपनी जगह सुनिश्चित करनी है। तो दोस्तों और अब प्रहारक छोर पर संतोष प्रहार किया है और गेंद पर चढ़ के क्षेत्ररक्षक मौजूद, कूदे थे लेकिन गेंद हाथ पर लगकर सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए संतोष चढ़कर मारा है यहां पे एजाज को, एजाज की गेंद को। हेलो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए मयंक भाई बताएंगे कितने गेंदों में कितने रन शेष है? 4 गेंदों पर 5 रनों की दरकार। डू और डाई रेट चलती हुई दोस्तों, अत्यंत रोमांचक यह मैच जिसका लुत्फ उठा रहे हैं आप सभी। एजाज यहां पे दिशाहीन गेंदबाजी की थी। संतोष को अगर ऐसी गेंद फेंकेंगे तो संतोष ऐसी गेंद को मारेंगे। एजाज की अगली गेंद बेलतरा इनसे गेंदबाजी करते हुए एजाज की गेंद का सामना करते संतोष। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, दिशा से भटके हैं एजाज यहां पे। वाइड गेंद, अतिरिक्त रन जुड़ते हुए यहां पे सचिन वॉरियर के खाते में और 4 गेंदों पर 4 रनों की दरकार। प्रहार किया है यहां पे, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और देखिए दोस्तों कितने खुश हैं यहां पे सचिन वॉरियर लोरमी के पूरे खिलाड़ी, जोर से आके कूद के संतोष को गले से लगा दिया। संतोष जनक पारी खेली अपनी टीम के लिए। एक बार जोरदार तालियों से संतोष का उत्साहवर्धन करें। मैन ऑफ द मैच की घोषणा करवा देंगे। 5 छक्के लगाकर खेल रहे हैं संतोष। मैन ऑफ द मैच की घोषणा करवा देंगे मैंक। लगातार 3 दिनों से ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, मैं बता देना चाहूं कि जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है विगत 3 दिनों से मैन ऑफ द मैच के रूप में स्मार्ट वॉच प्रदान की जाती है, जो कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच प्रदान किया जाएगा हमारे सरकटना क्षेत्र के टाउन इंस्पेक्टर स्मार्ट एंड डैशिंग जेपी गुप्ता जी के द्वारा। साथ में उपस्थित इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान, इस मैच टुटेजा के फर्नीचर हैं प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पमनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा। संतोष जिन्होंने 5 छक्के लगाकर 33 रन बनाए हैं। और संतोष को मैं आज एक बात बता दूं कि संतोष भाई जहां अभी आप मैन ऑफ द मैच लेने जा रहे हैं, स्टेज के पास खड़ी स्मार्ट स्पोर्ट्स साइकिल भी आपकी हो सकती है अगर टूर्नामेंट में आप सर्वाधिक छक्के लगाते हैं तो। बेहतरीन मैच जीताया है आपने। उम्दा आपको मैन ऑफ खेल द का मैच परिचय के देते रूप हुए में स्मार्ट वॉच प्रदान की जाएगी हमारे सरकंडा क्षेत्र के टाउन इंस्पेक्टर स्मार्ट एंड डैशिंग जेपी गुप्ता जी के द्वारा, सुरेश पांडे जी के द्वारा, वरुण